Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. On behalf of Marketing Association of Pakistan, it is my privilege to welcome you all. My name is Ali Hassan. I'm the Honorary Secretary of Marketing Association of Pakistan. Some of you have attended our previous team meetings. Some of you are attending it for the first time. To just give you a brief about what these team meetings mean to us. Basically, the mandate of Marketing Association of Pakistan is to create awareness about the latest issues facing marketers in Pakistan. Can you all hear me? And to provide a platform where we can mutually discuss the issues and the challenges facing the industry. Of course, we hold our annual conference, which is known as MarCon, every 2 years. And we also have an annual event, which is the Marketing Association Annual Award, where we give awards to the deserving marketeers every year. But in addition to that, because the field of marketing is so vast, we're not just dealing with practitioners, we're also dealing with students who are just joining the team. We decided a long time back to start a monthly team meeting. And the idea of monthly team meeting was, which has now been branded as NATCO for the last few months. The idea was to invite the industry leaders, thought leaders who can come and share their wisdom, their vision with the participants. So for today, we have Mr. Suhail Zindani as our guest speaker. We really had to create a summary of his introduction because his profile is so detailed. Just to give you who Mr. Suhail Zindani is, he's a researcher, keynote speaker, happiness activist, that he can elaborate. But remember, UAE has a Ministry of Happiness, a leadership, talent, and performance consultant, and a disruptor. Again, that is something that he will be in a position. I mean, we are living in an age of disruption. So, how he describes disruption is, of course, for him. So, basically, he's somebody who believes in transformational leadership, who believes in transforming the culture of an organization. Creating the structure of an organization is fairly easy, but creating a sustainable culture for any organization is the real challenge. A culture is the spirit of an organization, if structure is the body. So Suhail has been doing all that, and I like the last sentence which said that he lives in Karachi, Pakistan, and at various airport departure lounges. So with that, I invite Suhail Zindani. बोलो जिन्होंने मेरे लिए ताली नहीं बजाई, I give you one more opportunity to clap for. You know, this was not for me. It was for you to wake up from this long day that you had. I mean, if you were stuck in traffic, वैसी बात है जब कोई ऊपर ठहरा हुआ नहीं था, वो stuck ही हुआ होगा. It was a chaos, but I hope that there are a few more people coming in. और इंशाल्लाह refreshment तक वो पहुंच जाएंगे. Okay, so just building upon that introduction thing that was, I think, very recently I was in a conversation with Said Saab. Having conversation with Said Saab. How many of you do it often? You work in a Said company? Raise your hand. Beautiful. They are the best people to work. People hate them. People tell, oh, क्या पागल हो, वो most difficult. No, they are the easiest. Corporate से मुश्किल होता है. Set को तो समझ आ जाए. He'll do it.
He doesn't have to take a bloody permission from somebody, isn't it? There's a very popular case study of Faisalabad. वो कोई उनको सैफ बेचने गया, तो पहले नहीं लिखा, तो दूसरे बंदे ने कहा मैं बताता हूँ, फिर उसने उसको बेचा, उसको बताया देखिए सर ये 45 लाख रुपए लगेंगे, तो 1,35,00,000 बचेंगे। उसने कहा फिर 2 लगा दो। समझ आ रहा है? So they love it. They want to decide upon things. So he asked me, "Sir, what you do?" And for him, I can't come up with all the heavy words that we use in our profile. No, leadership consultant. Who gives a shit about that? I told him, "Sir, my job is to make people uncomfortable. And while they become uncomfortable, they laugh. Isn't it difficult? Hello? Is it a difficult job? Yes or no, right? Hello? We make people uncomfortable. They want to slap our face, right? My job is to make you uncomfortable without really offending you, while doing it in a subtle way. So, आज I'll be talking about what matters now, and this is going to be a power talk. Power talk का मतलब ही power talk होता है, यानी I'll go in a rapid fire speed. A lot of information coming your way. इसका ये मतलब नहीं है कि I'm not taking questions. I love questions. अगर क्वेश्चन अच्छा हुआ मैं भूल जाऊंगा, मेरे को पावर पॉइंट खत्म करनी है। ऐसा कौन सा कोई शर्त लगी कि जब तक 27वीं स्लाइड द एंड की नहीं दिखाऊंगा मैं जाऊंगा नहीं, ऐसा तो कोई मजाक है ही नहीं। इफ वी हैव ग्रेट क्वेश्चंस वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चंस। डज दैट मेक सेंस? विल यू आस्क क्वेश्चंस? नहीं, अभी से तय कैसे कर सकते हो सकता है सवाल हो ही ना, मतलब पहले से बंदा तय करके बैठे नहीं सवाल पूछूंगा, दैट्स आल्सो रॉन्ग, राइट? बट इफ यू फाइंड अ रेलेवेंट क्वेश्चन प्लीज थ्रो इट, दैट्स द आइडिया। आर यू देयर विद मी? नाउ होता ही है कि बहुत दफा गेट कैरिड अवे, I get carried away and I forget concluding my program. So अभी मैंने क्या आज से एक टेक्निक सीखी है, मैं प्रोग्राम में जो कंक्लूजन है वो पहले ही बता देता हूँ, ताकि बंदे की प्रेजेंटेशन में ये कोई ये फीडबैक ना दे कि इसने कंक्लूड नहीं किया। So I start with conclusion and conclusion is this is not your father's world. Are you there with me everyone? The game has already begun. This is not your father's world. Hello? होता था। How many of you have said this thing at least 5 million times to your children? हमारे दौर में तो ऐसा होता था, raise your hand. अच्छा आपको किसी ने कहा है बेटा हमारे दौर में ऐसा, honestly बताओ, do you really give a shit about that? उस दिन अभी मैंने थोड़ी एक बड़ी सी गाड़ी ली है, तो मेरी बेटी ने मेरे वालिद के सामने कहा मैं इस गाड़ी में जाऊंगी। मेरे वालिद ने कहा हम लोग 8-8 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। Do you think this data helps? मैंने उनको कहा कि आप करीब के स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं लेते थे? वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आप इतना दूर जाते थे? उनको बुलाओ बात करें। You see, he ended up in discussion. But the problem is that we love living in past, and I'm going to talk about it as I move forward. But the conclusion is this is not your father's world. And when I'm talking about what matters now, I'm talking about what matters now. Although I'm talking to marketeers, in normal perception ये होता है कि नहीं जी मैं मैनेजमेंट ट्रेनर हूँ और जो मैनेजमेंट और HR वालों से बात करूँ, let me make it publicly clear, I rarely talk to HR. Rarely. My majority of my job is with CEOs. That's what I do primarily. But then फिर I like doing masti almost everywhere. This morning I was speaking at the CS conference. Today I'm speaking here. Day after tomorrow I'll be speaking for pharmacist conference, and then I'm talking at Habib University TEDx. I don't know how many of you know of that. That's an amazing event that they're doing. I'm looking forward for the kind of speakers that they've gathered. I think I'm the lowest profile, so I really look forward to be part of that wonderful event. Let's get going. The score of my work is creating organizations that are fit for future. Okay, you can declare creating organizations that are fit for future. So people ask me, how are you going to do that? Technology and all that nonsense. No, for that you need to create organizations that are fit for human. Do you think your organizations are fit for human? If you are not a CEO, why are you not answering? Because CEO knows nahi hai. He knows नहीं है, and he can publicly now confess. Start confessing it. मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ. How many of you have used Uber or Careem? Raise your hand. Wow. कितनी देर लगती है आपको रेटिंग पता करने में ड्राइवर की? जितना जल्दी आप देख लो वहां पे लिखिए, right? So I have Asif Saab over here, right?
somebody who is an organization figure able. अगर सर को मैं पूछूं कि आपको कितनी देर लगेगी अपने एम्प्लॉय की रेटिंग पता करने, ये मुश्किल है अगर एक प्रिसाइज रेटिंग पता करनी। वैसे जनरली परसेप्शन पता चल सकता है, बट नंबर्स में पता करना हो तो डू वी हैव HR systems for that? That's a perceptive, subjective ना, but जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर बहुत अच्छा हो सकता है बट उसकी रेटिंग कुछ और ही रिफ्लेक्ट कर सकती है, बिकॉज उसके साथ जो गेस्ट बैठा था ही वाज एन एसोल। ये हो सकता है ना, that's a fact, right? That's how it is. But what I'm trying to say, my friends, over here is that the kind of organizations that we have right now are not agile enough to take up what is happening around us. Just not agile. Okay, I'll ask you a question. How many of you think we are prepared for a kind of a workforce जो आपके पास इंटरव्यू देने आए और आपको कहे सर देखिए मैं मंडे ट्यूसडे को तो आ सकता हूँ, वेडनेसडे क्या है कि सुबह मेरी योगा क्लास होती है, फिर मैं वो डांसिंग सीख रहा हूँ, रात को मेरी आर्ट्स की क्लास है, फिर थर्सडे फ्राइडे में आया करूँगा। फिर आपने कहना है बेटा तू योगा ही कर, राइट? व्हाई? Because our traditional work cultures have never allowed this. Yes or no? Yes. That's a problem. The organizations are not understanding the kind of workforce that's now coming in. Let me ask you a question. How many of you played video games? Wonderful. Video games जिस बच्चे ने खेला है और जिस बच्चे ने रोड पर खेला है उसका प्राइमरी फर्क बताओ। जिसने रोड पर खेला है उसको हारना आता है, जिसने वीडियो गेम खेला है वो जैसे ही हारने वाला होता है रीस्टार्ट कर लेता है। वो कहता है राइट? इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट ऑलटुगेदर। मैंने 2009 में एक आर्टिकल लिखा था द काउंटर स्ट्राइक एरा, इट वाज पब्लिश्ड इन HR Asia and I think that gave me a lot of recognition there, but what I'm trying to establish over here is that organizations are changing, they're changing fast, but unfortunately the organization design is not evolving। और अभी आगे चल के I'll talk about very specific marketing related content and you'll appreciate that, but we'll talk about it। मैं आपको एक example और देता हूँ। हम बैठे हैं यहाँ पे Movenpick में, ठीक है? My last news that I got from them is that Accor has taken over this hotel, so very soon it will be Accor। एक हमारे पास है Airbnb। How many of you used Airbnb or benefited from it? Come on, raise your hand. Airbnb. Wow. ये आइडिया आपको नहीं लगता किसी होटेलियर को आना चाहिए था? Booking.com किसी एयरलाइन वाले को आना चाहिए था, लेकिन उनको आ ही नहीं सकता था उनको, because they were so stuck in bureaucracy. They just can't think like that now anymore. I'm working with banks now. How many of you represent banks? Do we have any somebody who represents that? हाँ, क्योंकि वो तो भी busy होंगे ना. So, but I talk to banks and I tell them, man, you can't innovate. You don't have an innovation DNA. तो maximum क्या कर सकते हो कि कोई innovation होगी उसको खरीद लोगे. That's the max you can do. You can't create yourself because DNA is not designed for that anymore. आप में से कितने लोगों के बच्चे हैं? Raise your hand. और आपको वाकई देख के होता है किसके हैं? किसके हैं? बिल्कुल ये मेरे नक्शे कदम पे नहीं है, ये ननियाल पे गए लगता है। You know the kind of rescue that we come out with. But that's a problem. That's a problem. We can't own them. Why? Because the way their brain processes and the way we have been brought up is different. So let's see how this works. But this one petition has always inspired me to core. And what is that? The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it's too low and we hit it. मसला ये थोड़ी है कि हमारे गोल्स बहुत बड़े और हम मिस कर देते हैं। मसला ये एकदम एक तो थके हैं, ऊपर से हम अचीव भी कर लेते हैं, और अचीव करने के बाद भाई सेटल हो जाता है कि I have done it all। मैं देखिए अब यहाँ अगर कोई हुबुल वतनी वाला है और कश्मीर को लेके सेंटी है तो मेरे टॉक में हो सकता है आप थोड़े दुखी हो, बट सिवाय पॉपुलेशन को ग्रो करने की काबिलियत के अलावा मुझे अब नहीं समझ आता कि आप में और इंडिया में कंपेयर करने लायक बचा क्या है।
क्या बचा है? मतलब इतने चौड़े हो क्यों रहे हो? बंदा सोचे कि आप चौड़े हो ही क्यों रहे हो। मैं आपको एक नंबर, मैं तो नंबर के बगैर तो बात ही नहीं करता। 2016 में आपकी स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी $80 बिलियन विद डॉलर मैनिपुलेशन, स्टॉक मार्केट क्रशिंग, आज होगी तकरीबन $35,000, $35 बिलियन, 2016 में कितनी थी? $80 बिलियन। 2017 जनवरी में टाटा की एक कंपनी है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, उसने अपनी $100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन सेलिब्रेट की। व्हाट? मतलब हम विराट कोहली को आउट करके कह रहे हैं बराबरी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करो ना। विराट कोहली के भी आउट करने में फरिश्ते डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वरना वो स्किल्स है। इस बार वर्ल्ड कप में कितने लोग एंजॉय कर रहे थे? 92 में भी यही हुआ था, हाथ उठा लो मुसलमानों। 92 में भी यही हुआ था, यही हुआ था। लेट मी टेल यू, मैंने पहले दिन लिखा था हम हार जाएंगे। लोगों ने कहा इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो? मैं कहा क्योंकि रमजान नहीं है हमारे जीतने के लिए। वो 92 का वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, रमजान इज क्रिटिकल बिकॉज वी नीड डायरेक्टली फरिश्तों की इमदाद। विराट कोहली वरना 2 बॉल पे 2 दफा कैच, आपका दिमाग खराब है, आपको लगता है ये स्किल से होता है, देन यू आर ड्रंक। ये स्किल से नहीं होता, इसमें फरिश्ते इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कैचेस निकलवा रहे होते हैं, वो पहला कैच निकलवाया, ड्रॉप कर दिया, इवन फरिश्ते अपसेट हो गए कि बॉस के मुश्किल काम है, नहीं करो पकड़ो इसका बॉल था, ये विराट कोहली। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी somehow have been a very pumped up nation and people thrive at it. मैं चाहता हूं ये कॉन्फ्रेंसेस, ये HR कॉन्फ्रेंस, there is a lot of talent. अच्छा, मैं ढूंढ के थक गया। I'm working with CEOs, बोर हो रहे टैलेंट, yes or no? वो कह रही है कहाँ, ये कहाँ छुप के बैठा है, सामने क्यों नहीं आता एक दफा? We need to come up with this thing. देखें, I hate it जब मुझे लोग मोटिवेशनल स्पीकर इंट्रोड्यूस करते हैं. I think that's the most abusive thing that could be said for me. I'm not a motivational speaker. My job is to make you bloody uncomfortable. हम पता नहीं चौड़े हुए हैं, वो पता नहीं. There's a lot that needs to be done. 2015 ICICI Bank offered 10 crore rupee loan to 100 graduate ideas in India. Talk to HBL to grant 5 लाख रुपए. वो फौरन पूछने वाले इसके अगेंस्ट रखोगे क्या? समझ आ गई? वो इकोसिस्टम ही नहीं हम बना रहे हैं, हम वो पैटर्न ही नहीं चेंज कर रहे. So let's now see what to go about it, what to do, what matters now. And as I said, I'm not here for motivational pump up. My job is to talk business. And let's see what's the first. The first thing that matters now is values. आप कहेंगे ये तो हमेशा से मैटर करती थी. नहीं जी, आज इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है. Your values. How is you? Okay, ना इंडस्ट्री का नाम लेना अच्छी बात नहीं है because मैं सबके साथ काम करता हूँ, so that's a bad habit. But okay, here you go. Values matter the most. What do you think? आज corporates पे trust कैसा है लोगों का? Hello, hi, low. And Stephen M.R. Covey की किताब Speed of Trust में उसने एक बहुत जबरदस्त इक्वेशन दी. When trust goes up, I think this is fantastic. If you're taking notes, this is worth taking note of. If trust goes up, cost comes down and speed goes up. Hello? When trust goes up, cost comes down and speed goes up. Vice versa. When trust goes down, cost goes up and speed goes down. So look at now, when we don't have trust on banking channels, what's happening? The cost of regulation, the cost of penalties is hitting us. How many of you have start doubting कि आपके डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन लिख के दी है, इसकी वाकई आपको जरूरत थी या उसकी मलेशिया की ट्रिप के लिए उसको जरूरत थी? समझ तो आ रहा है ना मेरी बात? मैं ज्यादा खुल के नहीं बोल रहा, लेकिन आप समझदार हैं. The trust deficit is there. वो मार्केट में दिख रहा है.
एंड एज अ रिजल्ट मैं टू बी ऑनेस्ट, देखिए हम कहते हैं करप्शन, मैं ठीक है करते रहे यार, कोई नहीं, बात होगी, मैं कौन होता हूँ कोई, आई एम नॉट अ ब्लडी मोरल जज, बट व्हाट आई एम सेइंग इज डॉक्टर, रिलीजियस टीचर और टीचर, इन तीन के नाम में कहीं भी करप्शन आए ना, इसका नुकसान सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वी आर द मोस्ट वल्नरेबल व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ देम। वहां ट्रस्ट डेफिसिट आ गया ना, बहुत मुश्किल होगी, और अब हम ग्रेजुअली वो पॉइंट हिट कर रहे हैं। बट ट्रस्ट गोज अप, कॉस्ट कम्स डाउन, स्पीड गोज अप। आप आज ये ब्रांड क्या है, ब्रांड ने क्या लिया है आपसे? ब्रांड ने खाली आपका ब्रांड बिल्डिंग है क्या? ट्रस्ट बिल्डिंग ही तो है ना। उसके बाद आपने जो मांगना है मांगते रहे, इट्स ऑल ब्रांड ट्रस्ट बिल्डिंग। और क्या है? मैं तो नहीं इतनी मार्केटिंग समझ आती, मेरी तो दोस्त होशियार थी इसलिए मैं पास हो गया मार्केटिंग में। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इट्स सिंपल कॉमन सेंस। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, ऑल्दो मेजॉरिटी तो बहुत ही यंग ऑडियंस है, बट आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 9/11 से पहले एयर ट्रैवल किया है? वो हाथ उठाओ। बाकी लोग उनके लिए ये इतना रेलेवेंट नहीं होगा। यस, वर एयरपोर्ट्स दैट मिजरेबल? You just walked in and went off and it was such a wonderful time, huh? फिर 9/11 हुआ. The trust on passengers went, the cost of security went, and the speed of transaction went. That's how it is. इस्लामाबाद एयरपोर्ट, पुराने एयरपोर्ट पे कितने लोग ट्रैवल किए, वहां से वापस आए। What a romantic airport. एक दफा मेरी 10 बजे की फ्लाइट थी, जो PIA जिसके लिए माजरत हुआ था 2 बजे हो गई, लेकिन माजरत हुआ था। ये आप देखें, कर्टसी है। तो फिर मैं 2 बजे, आप सोचे रात को जब आप बस में लटके, वो कैसा टाइम होता है। तो मैं जाके लटका, तो वो जो बस वाला था, मैं फिर बस चली तो वो यूं गया, यूं घुमाया, यूं घुमाया, यूं आया। मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाईजान हमको बिठाओ, उससे पहले ये तुम घूमने उमने के काम कर लिया करो। तुम्हें नहीं लगता उससे फायदा होगा? उसने कहा, हमने बात सही कही है, लेकिन हमको ऐसा बोला है करने का। मैंने कुछ नहीं बोला, क्या बोलूं उसको ना। फिर मैं लाइन में खड़ा हो गया, तो फिर एक बंदा खड़ा हुआ था ASF का, उसने मेरा बोर्डिंग पास लिया, मुझे देखा और फिर वापस कर दिया। और फिर उस शख्स के ठीक 4 सेंटीमीटर बाद, फासला देख रहे हैं, 4 सेंटीमीटर एक और शख्स खड़ा था, जिसने वापस मुझसे बोर्डिंग पास मांगा, देखा और फाड़ा। तो मैंने ASF वाले को देखकर पूछा, आपसे फटता नहीं है? तो उसने फिर मुझे जिस तरह देखा, मैं कहा कुछ और फटे, इससे पहले मैं चला लूं। कसम खाई हुई है कि दिमाग यूज नहीं करेंगे। चेकिंग देखते हैं बाहर, जो हमारी हाई प्रोफाइल चेकिंग होती है, कभी आप इस बंदे से पूछो बोनट में क्या होता है, इसको नहीं पता है बेचारे को, लेकिन ये देख रहा है। व्हाई? बिकॉज समवेयर अप देयर ब्लडी ब्यूरोक्रेटिक लीडर doesn't want to think through system and doesn't want to take feedback from people who are actually doing it. मैंने कितनी दफा पूछा, आज तक बोनट में मिला है? उनका नहीं तो गर्मी से भी खुद फट जाएगा, आप सोचो। मैं कहा बात सही है। तो मैं कहा तू क्यों चेक कर रहा है? बोला कैमरा लगा हुआ है, करना है। But that's true. Are you getting my point or not? So that's a problem now. So first, ये जो values है, why we need it the most, because see, I'm telling you, we are going to hit a massive recession now. ये financial recession नहीं है, ये young people coming into business recession है। They are not joining corporates. आपने कभी इतना बड़ा राइज देखा था young entrepreneurs का? They want to do their own stuff now. वो कह रहे क्यों जाकर ऐसी जगह पे मत मारना, इससे अच्छा अपनी काम करें, थोड़ा कम ही कमा लेंगे, मजा तो आएगा। Because our corporates are getting boring. I'm working with CEOs to make sure that organizations get interesting. I always ask CEOs simple question: would your child work here? Just answer me this. Would he like to work here? अगर वो मना कर रहा है तो आप सोचोगे बॉस एम्प्लॉय कितनी अजियत से गुजर रहा होगा। What matters now is values.
where we humanize workplace. Second, which is my favorite, what matters now? Second is innovation. अच्छा, अब ये ना बहुत talked upon term है. आजकल हर बंदा innovation पे कुछ ना कुछ बोल रहा है. मैं इंशाल्लाह वैसा नहीं बोलूँगा. मेरे लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ. बैंक का नाम नहीं लेंगे. बैंक की बिजनेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने मुझे कहा कि आप आएँ और खिताब करें, तो मैंने कर दिया. मेरे खिताब के बाद जो प्रेसिडेंट बैंक के वो स्टेज पे आए, उन्होंने बताया कि इनोवेशन हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है. तो मेरी तो हंसी निकल गई. लेकिन चूंकि इनवॉइस प्रोसेस नहीं हुई थी, इसलिए मैंने हंसी रोक के रखी. क्योंकि एक दफा इन्वेस्ट प्रोसेस हो जाए ना, फिर भाई फिर काबू में नहीं आता. फिर मैं सिर्फ सच बोलता हूँ. मैं लोगों को कहता हूँ डोंट कॉल मी फॉर प्रोबोनो सेशंस, बिकॉज इन प्रोबोनो सेशन फिर मैं लिहाज नहीं करता, राइट. बट उसने बोला, मैं सुन गया. फिर मैं उसके पास आफ्टर लंच ब्रेक हुआ तो मैं गया, तो मैं कहा आप इनोवेशन पे कुछ कह टॉप प्रायोरिटी. मैं कहा 3 सवाल पूछूंगा. मैं कहा हैव यू डन इनोवेशन ट्रेनिंग फॉर एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग योरसेल्फ टू द ब्लडी गार्ड स्टैंडिंग आउटसाइड योर डोर? नहीं, अभी हम लोगों ने अपने टॉप लीडरशिप को भेज रहे हैं इंस्टेड. इनोवेशन की प्रोसेस हुई थी. मैं कहा गुड, अच्छा कर रहे हैं आप, यही करना चाहिए. मैं कहा अगर एक मैनेजर का सबऑर्डिनेट इनोवेट नहीं करता तो क्या मैनेजर पे कोई पेनल्टी है? नहीं. अच्छा, कोई डेडिकेटेड बजट है इनोवेशन का जो हर ब्रांच मैनेजर के पास हो? नहीं. मैं कहा नहीं, काफी सीरियस है आप. बस वही प्रोसेस के लिए बाकी काम नहीं मिलता. But are you getting my point or not? Too much talk, too little do. अब मैं आपसे, यहाँ पे कितने लोग ये मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, ब्रांड्स और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, वो हाथ उठा ले सारे लोग जो भी हैं. है ये लोग. आपको पता है एक यूनिवर्सिटी जाने वाला बच्चा 1 साल में 1 टेराबाइट से ऊपर का डाटा प्रोड्यूस करता है सोशल डिजिटल मीडिया पे, यस और नो? इस बेचारे को 1 लाइन लिखकर अप्रूव करवाने में कितना टाइम लग जाता है? There's a problem. There's a problem. एक में I'll throw an idea towards Marketing Association of Pakistan and see if this works. How many management team members do we have over here? So 1, 2. And I just put it up. आप देखें if that's a possibility. When I said I was in India, so ICICI के gathering में we had an opportunity to listen to one of the advertising forums that they had there. So one advertising forum was led by veterans and people who have been doing big things in the industry. But then they had a shadow board. Shadow board. What is shadow board? There was a management committee made out of university students, and they were coming up with their own bunch of ideas, and they used to present to veterans. Veterans used to debate on it, and finally they had to decide on it. And one of the veteran member I was talking to, he said, last 12 events, those rascals convinced us for 11. One finally we were able to do. But that's wonderful. Welcome. Who's going to lead the industry anyways? But for innovation, I think there's a complete radical shift required. Absolute shift. Where we understand कि innovation कोई कोने में बैठकर होने वाले डिपार्टमेंट का नाम तो है ही नहीं. ठंडा मतलब कोका कोला. ये इस लाइन की कितनी वैल्यू होगी? बिलियंस ऑफ रुपीज. ये आइडिया पता कहाँ से आया था? बेचारे ब्रांड मैनेजर को रात को बोला था कि आज रात 8:30 बजे से पहले लाइन चाहिए. उसको घंटा नहीं समझ आ रहा था. फिर कैफेटेरिया में गया, वहां बैठा था, तो उससे पूछा, उससे क्या है ठंडे में, क्या है? उसने कहा ठंडे में क्या है? ठंडे में खाली कोका कोला है. वो बेचारा गरीब कोक सर्व करता रह गया. भाई मैंने
Are you getting my point? Are you getting my point? That's it. What I'm saying is, where is the brain? The brain is everywhere. Unfortunately, the kind of bureaucratic structures that the organize. मैं यार एक एग्जांपल दूंगा, मतलब इसके ऊपर तो पे को बात ही नहीं है ना, गेम खत्म हो जाएगी. गज़वा खंदक के बारे में कितने लोग पढ़े, हाथ उठाओ. I mean, you've read of गज़वा खंदक. Beautiful. ये खंदक, गज़वा खंदक खोदने का आइडिया किसका था? हज़रत सलमान फारसी का आइडिया. Yes, आइडिया हज़रत सलमान फारसी क्यों दिया? He was from Iran और वहाँ पे. Beautiful. He was from Iran. This was a Persian strategy, not an Arab strategy. You there with her? Yeah. The answer is right. But do you know ना कि मैं trainer हूँ? So I'll have one more better answer. बंदा पूछे पैसे किसके ले रहा है? Very right answer. But now I'll give you an answer which you can't deny. हज़रत सलमान फारसी ने आइडिया इसलिए दिया क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइडिया मांगा. Come beat this. आप थोड़ी देर नोट तो करें कि आइडिया मांग कौन रहा है. वो जात उसको खंदक का क्या था, खड्डा खुदा के सबको गर्क करवा देती, जिसको अल्लाह ताला पैकेज में ऑफर दे रहा हो तो कहते दो कौम को दो पहाड़ों के बीच में जम कर दूं, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. जस्ट टू टीच अस इडियट्स द पावर ऑफ कंसल्टेशन. एंड वंस कंसल्टेशन then consensus. Because if you remember, this is Ghazwa Khandak. All major Sahabas, in fact all fours which later became Khulafai Rashidin, were part of their battle, and they by ranks were in the CXO team. He was somewhere in lower ranks, but because the idea was good, the idea was approved. So much to learn from this. But unfortunately, the power of consultation and the power of consensus is dying. Is somehow dying. आप देखें organization में वो leader पे. So here is my catch to all of you, and I think boss mantra number 1 मैं इसीलिए आपके लिए लाया हूँ. आप में से कितने bosses हैं भाई, हाथ उठा लो. यानी आपका एक subordinate है, आप हाथ उठा लो. और here I am giving you a mantra. Are you ready? IDK, I don't know. I don't know. आपके पास आपका बंदा प्रॉब्लम लेकर आया, उसने कहा बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, I don't know. फिर देखो आइडियाज. नहीं चौधरी साहब इंतकाल ना कर जाए, I don't know बोलिए. इंतकाल ना कर जाए. वो कहते हैं रखो इसको मैं देखता हूँ. मतलब अब आपको पता है वही मनूस आइडिया आएगा पुराना वाला, कुछ नया नहीं आना. That's a problem. Because आपको तो सब आता है. और मैं आज आपको एक बात बताऊं, थोड़ा आइडिया सुनने वाले भी बने. बाज लोग इतनी कुछ चवले मारते हैं, आइडियाज पूछते करते अपनी है. डेमो दे दूं. सो डू यू हैव चिल्ड्रन? ओके, आई एम नॉट आस्किंग हाउ मेनी. ओके, नाउ यू गो होम टुडे. ये गए होम, घर पे गए, अपने बच्चों से पूछा, हाँ बच्चा आज बहुत अच्छा सेशन अटेंड करके आप बताओ कहाँ खाना है. तो एक बच्चे ने कहा मैकडोनल्ड्स खा लेते हैं. तुम बताओ बेटा. पापा आज रोस्टर्स चलते हैं. बेगम तुम भी बोल दो. मैं कहा 2 दरिया हुआ आते हैं. फिर बुंदू खान ले गया. अब मेरा देखो प्रॉब्लम किसी को बुंदू खान से नहीं था. प्रॉब्लम यह था कि तुझे बुंदू खान ही करना है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग काहे की कर रहा था. बंदा कुछ करने वाला भी बने ना फिर. Are you getting my point? Man, I'm on the third part. On what matters now is adaptability. Party of past versus possibilities of future. आप कई ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, वो पुरानी मैयत खत्म ही नहीं होगी. वो दौर भी क्या दौर था. ये कितने लोग सुने, क्या दौर था भाई. इतना अच्छा दौर था, आप उसमें इंतकाल क्यों नहीं किए. जब आपको लग रहा था कि आप एक गंदे दौर में एंटर होने लगे हैं, आप कड़े आते. आप कहते नहीं मैं गंदा दौर है, मुझसे काबू नहीं होगा, मैं जा रहा हूं. मैं आज आपको साइकोलॉजिकल रीजन बताऊं व्हाई वी लाइक पास्ट. बिकॉज वी कांट स्क्रू इट फर्दर. दैट्स द ओनली रीजन वी लाइक पास्ट. नो सेम पर्सन वुड लाइक पास्ट. व्हाई वुड लाइक पास्ट? वो तो हो गया ना, वो हो गया. लेकिन वी समहाउ गेट ब्लडी स्टक विद इट. वो दौर भी क्या दौर, वो भी क्या बात थी. मेरे को बताओ, आज जितना नॉलेज एक्सेस करना पॉसिबल है, इससे पहले कभी था?
कभी था, अब आप कर नहीं रहे, इसमें भी दौर का मसला है। मैं सुबह दूध लेने गया, अच्छा भला वो 3 पैकेट मैंने लिए थे, मस्त थे दूध, किलो के 3, ये फैसल मिल्क शॉप, वहां बुढ़ो खड़े थे, बेटा दूध तो पहले मिलता था। मैं कहा कौन थी आपकी गाय? वो और ऑफेंड हो गए, उसका क्या हुआ? मैंने कहा भाई कौन थी? बेटा पहले गाढ़ा दूध आता था। मैं कहा आप किलो की 3 लें, उबाल के किलो करते हैं, इंशाल्लाह पिए गाढ़ा होगा। और अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे दूध में उंगली ना करें। We are stuck. I'm telling you as an organization we are stuck. आज I'm working with those states जिनके बच्चे आ रहे हैं काम पे, as I know this community, बच्चे आ रहे हैं काम पे, वो बन ही नहीं रही है। अब्बा को मुंशी ज्यादा पसंद है बच्चे से, क्योंकि मुंशी मेरे दौर का है। मैं फिर दोनों साथ ही मरो, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखे तो इसी को जाना है ठाकुर। एंड दिस पर्सन शुड एम्ब्रेस द प्रोसेस। इसका यह मतलब नहीं है कि पहले जो हो रहा था वो गलत है। मैंने ये कब बोला? मैं ये कह रहा हूं आज जो हो रहा है वो रियल है, वो एलोसिनेशन नहीं है, वो आइडिएशन नहीं है, वो ड्रीम नहीं है, वो रियलिटी है। और कुरान में अल्लाह ने असर की कसम खाई है, जमाने की, गुजरे हुए की नहीं खाई है। ये कोई है ही नहीं चीज, इट्स नॉन एग्जिस्टेंट। हम खुश आज नहीं होते, खुश भी पहले है तो बात है। और दूसरा अगर खुश होने का मौका है वो फिर मैं कल हूंगा, आज तो नहीं हो सकता। बहुत टफ चल रहा है। मेरे को अभी थोड़े दिन अभी एक इनविटेशन आया था सेशन में। आजकल माशाल्लाह आप देख रहे हैं इकोनॉमी हमारी कैसी थ्राइव कर रही है। तो मैंने कहा कि हमारी कंपनी में बहुत इस वक्त डिप्रेशन का माहौल है, तो आप थोड़ा खिताब करें। मैंने कहा वैसे ऐसे काम भी करने पड़े। मैंने उनको कहा, मैं कहा इसमें डिप्रेस होने की बात क्या? बोला काम ही नहीं है, डिप्रेस नहीं होगा बंदा। मैं कहा क्या तेरी ख्वाहिशात हैं जिंदगी की? उसने कहा सर ख्वाहिश तो ये सुबह उठूं, गोल्फ खेलने जाऊं। मैं कहा तो आजकल काम नहीं तो खेल के आया कर। मौका मिला है ना, तो मौका मिला है। मतलब एक तो इकोनॉमिक रिसेशन है, उसको तू ऐड कर रहा है डिप्रेशन के साथ, ज्यादा मनुष्य नहीं है। खाली रिसेशन रहने दे, डिप्रेशन तो आपका पर्सनल जाति पैदा करता है ना, ये तो और कोई नहीं लाया है, आपने खुद। आपने देखा है 5 लोग, sorry I get a bit upset about it. If you are a failure and you are depressed, you deserve it. तो जाहिर सी बात है, साले ने मेहनत ही नहीं की, नाकाम हुआ है तो डिप्रेस ही होगा तुम वक्त। बट इफ यू आर सक्सेसफुल एंड यू आर डिप्रेस्ड, दिस इज अ ट्रेजेडी। समझ आई? आप सब वो चीजें जिसके लिए लॉन्गिंग होती थी कि ये किसी दिन खरीदूंगा, आज मिली भी है चेहरे लटके हुए। आज सुबह मेरा मैरियट में सेशन था, उतरा मैं वो गाड़ी का अपना वेट कर रहा था वाले का, जितनी बड़ी गाड़ी से बंदा उतर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह इतना सड़ा हुआ मुंह। बंदा देखे कि तेरे को गाड़ी अल्लाह ने बड़ी दे दी, थोड़ा मुंह ही अच्छा रखवा देता। इसमें कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा दे, नहीं दुख है अगर बहुत ज्यादा, कोई कॉन्स्टिपेशन इश्यूज है, गेट इट सॉर्टेड आउट। आपको सक्सेस दी अल्लाह ने, उस पे भी ये मुंह बनाया हुआ। आप देखिए मैं आपको करके दिखाऊं, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई कर लें। कोई अगर सीनियर बंदा हो वो ये ट्राई करे, कोई बंदा आ रहा हो ना सीधा सीधा, उसको बोला आप डायरेक्टर बन गए, स्लो चलेगा, ताकि दुनिया उसके नूर से जलवा अफरोज हो सके। नॉनसेंस, दैट्स रिडिकुलस। In fact, that's cheap. It's cheap. The best leaders I've worked with are the ones जिनके साथ बात करने में I'm the most comfortable. Yes or yes? Yes. लीडर को अप्रोच कैसे करते हैं? एक ऐसा बंदा ना, या एक ऐसी बंदी जिसके साथ आप बात करें, you are comfortable. You're comfortable. आपको कोई घबराहट नहीं होती, आपको सोचना नहीं पड़ता ज्यादा. But at the same time, you respect the person for the value that the person brings on table. So to take adaptability, आजकल हम लोग डिजिटल हो रहे हैं। हेलो, डिजिटल हो रही है आपकी कंपनियां? Well, let me tell you now,
The way we are trying to go digital is ridiculously, shamelessly, obnoxiously, disgracefully stupid. मैंने अभी ये कंपनी से पूछा आप लोग डिजिटलाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने बताया हमने फेसबुक एट वर्क करवा लिए। हाउ रोमांटिक। फार्मा के कितने लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे? फार्मा से इन बेचारों से पूछो, इनकी जिंदगी एक्सेलाइज्ड है। ये एक्सेल पे डेटा डाले जा रहे हैं, ये रोजे हशर के दिन फिर इसका कुछ होगा, वरना अभी तो हमने घंटा कुछ नहीं कहा। We just love data, yes or no? हम जमा किए जा रहे हैं और बीच में कोई थप्पड़ मार के पूछ देना सर करना क्या, वो नहीं बता हमको। Too much talk, too little do। किसी को बताया आप डिजिटल कैसे हो रहे, हमने नए फोन दिए लोगों को। वाओ व्हाट डिजिटल, बहुत अच्छा। हाँ 80% don't know how to use the platform. क्या बात कर रहे हैं? बट आई एम टेलिंग यू दिस इज समथिंग जिसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस तैयार ही नहीं है। yesterday I was in Nathia Gali, कल ही था ना? हाँ, yesterday I was in Nathia Gali, I was facilitating program for KFC, wonderful company they are, and I just asked them, Mega, if I take my Google and I say, okay Google, what's the best chicken in town? And if the Google doesn't say KFC, you are dead. Hello, what's your name? I asked who's Yamna. Google said no result found. आपका वैसे ही जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं। If Google doesn't know you, why the hell you are existing anyways? It's insignificant now. Because that's the kind of world। अभी थोड़े दिन पहले इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको स्पेसिफिकली कहा था पाकिस्तान नहीं आइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ फतवा तो डिस्काउंट पे लगता है ना। वो बातें ऐसी कर रहा था, मुझे कहता है कि मुझे लग रहा है कि करामी ने कातिबिन की भी जॉब अभी चली गई है। मैं कहा जो जॉब क्रश हुआ उसमें? बोला हाँ उसमें। मैं कहा क्यों? बोला अभी अल्लाह डायरेक्ट गूगल से डाटा ले रहा है। करामी ने कातिबिन को क्यों इतना टाइम पे लगा है? गूगल के पास सब कुछ है। गूगल को वो भी पता है आपके बारे में जो शायद आपको अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं पता। नोट किया है कभी किसी चीज के बारे में बात करते हैं, गूगल आपको इश्तिहार दिखाता है, आप कहते हैं ये कौन बता रहे हैं? मुझे अक्सर फेसबुक पे एड्स आती हैं, बाल उगवाइए, नहीं तो कौन बता रहा है? कौन इनको ये डेटा दे रहा है? बट वो देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं वो कि भाई इसको जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग हम क्या कर रहे हैं? अखबार में पूरा पहला पेज, अगली दफा पुकड़े खाते में मैं देखूंगा आप कैसे हैं। Do you think I give a shit about it? No, things change। मैं आपको बताऊं, आपको अगर इसकी टेस्टिमनी देखनी हो ना कि ब्यूरोक्रेसी कितनी थकी हुई चीज है, आज जितनी बड़ी डिजिटल मीडिया एजेंसीज है ना, वो एक्चुअली मीडिया एजेंसी वालों की होनी चाहिए थी। If they would have been agile and adaptable at the right time, but नहीं, absolute naysayers, नहीं जी दुनिया हमारे हिसाब से ही चलेगी। फिर बेटा आपके भी मैगजीन के बारे में हम गूगल पे ही सर्च किया करेंगे, रियलिटी में तो होगा नहीं। There's a problem। मतलब डू यू अग्री? उनके पास सारा पैसा था, उनके पास सारे रिसोर्सेस थे, बट नहीं, क्यों? Adaptability and agility। We may not be interested in chaos, but chaos is certainly interested in us। और अभी तो ये जो जॉब्स और मतलब मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने डॉक्टर अताउर रहमान साहब को होस्ट किया था, उन्होंने सेशन लिया था, मास्टरी मॉर्निंग्स हम लर्निंग माइंड्स में करवाते हैं, तो अता साहब आए थे, हमने मैरियट में किया था, तो 300 बंदा था, अप्रॉक्स 300 समथिंग। हाँ, तो अता साहब ने चंद बातें बताई जो साइंस में हो रही है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन स्टेम सेल के जरिए 3D प्रिंट किया जा सकता है। किडनी खराब हो गई, मैं 2 प्रिंट निकालूंगा। अमेजिंग। हाँ, जुगनू ऊपर उड़ता हुआ देखा, ये रात को लाइट क्यों मारता है, इसको नहीं चलाओ। डीएनए निकाला, ट्यूलिप के साथ इंटीग्रेट किया। एम्स्टर्डम में यू हैव द फर्स्ट फील्ड ऑफ ट्यूलिप फ्लावर जो रात को लाइट देती है। सोचा था वापडा और केई का मुकाबला प्लांट्स करेंगे। इस तरह की वो और भी बातें बता रहे थे। तो एक पार्टिसिपेंट था, उन्होंने
बड़ा वाला नाउजुबिल्ला पढ़ के खड़ा हुआ और कहा ये आप कैसी कुफर की बातें कर रहे हैं। अता साहब ने किसी तरह डील कर लिया। फिर मैं अता साहब के, क्योंकि हमारा इवेंट था यार, मैं अता साहब के पास गया। मैं कहा सर आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस। हंसने लगे। उसने कहा सॉरी काहे का, मेरे को तो ये शुक्र किया कि मैंने अभी तक वो बताया जो हो रहा है, ये इसको कुफर लग रहा था। अगर मैंने ये बताया होता कि क्या होने वाला है, ये तो मेरे को मार देता। You see the kind of advancement that's happening. Your children would see that. Ages are going up. आपको पता है 2007 में एवरेज रिटायरमेंट एज क्या थी? 60 to 65 years. 2007 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 65 to 70 years. यानी ऑन एन एवरेज एक बंदा 60 में रिटायर है, 70 में मरेगा। घर पे आपने देखा है जो रिटायर्ड बंदा 10 साल बैठता है वो कितना भारी पड़ता है? हेलो, 2030 की प्रेडिक्शन है एवरेज रिटायरमेंट एज टू बी 45। यानी इस रूम में वैसे ही आधे से ज्यादा की तो नौकरी गई। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 110 इयर्स। अब आप सोचो जो 10 साल बुरा लग रहा था, 65 साल कैसा लगेगा? साइंस ने मरने नहीं देना है आपको। वो कह रही है जब तक जिंदा है पैसे देगी, इसको बचाओ। Things will change, and chaos is absolutely interested. But I think this naysayer attitude is dangerous. Bill Gates का एक quotation मुझे इतना जबरदस्त लगता है, and I think this is one of the favorites that I have. Success is a lousy teacher. Lousy teacher. कोई जीत जाए ना उसको बस। बॉम्बे बेकरी का नाम कितने लोग सुने? हाथ उठा लो। कितने लोग केक खाए? कितने लोग को शौक? जाने वाला साहब आप तो रहने दो, हम तो भुगत के ही आए ना हैदराबाद से। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई पैदा हो कोई मरे केक वही आता था। सो आई हेट इट। फिर एक शादी में मुझे किसी ने बताया ये बॉम्बे बेकरी वाले हैं, दे हिंदूज राइट। मैं कहा अच्छा इसको बिजनेस आइडिया दे। मैं गया, हेलो आई किया। मैं कहा सर आपको ऐसा नहीं लगता आपकी फ्रेंचाइज पूरी दुनिया में होनी चाहिए? अच्छा आइडिया दिया भाई ने। नहीं, मुझे कहते हैं तुमको अच्छा नहीं लगता पूरी दुनिया लाइन में खड़ी होती है? और तुसी ले आओ बिजनेस मॉडल इनको। Why? Because he's successful. Successful in his own definitions, which are lousy definitions, and people are just not willing to reinvent. यहां पर बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं, देखें जी हम ये शोषा के लिए काम नहीं करते, शोषा के लिए काम नहीं करते। मैं यही तो कह रहा हूं, इम्पैक्ट के लिए करें। If your cake is worth it, everyone should eat it. Get it on. But it's just your own capabilities. अपना दिमाग में बनाया हुआ है, इसलिए मैंने नहीं करना। Here you go. This is one of my favorites. मेरे पास टाइम कितना है बता दें आप लोग सच्ची। देख मैं भूल जाता हूँ ना, टाइम का मेरे को कदर नहीं रहता। मेरे पास 10 मिनट है वो। Yeah. What matters now? Passion. This is my favorite. In fact, the majority of my life work is around here. ये पैशन वो वाला नहीं, वो जो ये नॉनसेंस मोटिवेशनल स्पीकिंग में चल रहा है ना, अपने अंदर की आवाज सुनो। बॉस कभी डायरिया वायरिया हो ना तो ही आवाज आती है, बाकी कोई अंदर से आवाज नहीं आती। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। अंदर की आवाज सुनो, ये तो बात नहीं करने वाली, कोई अंदर की आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ बाहर की हरकतें देखो, हरकतें देखोगे उसमें से डेटा मिलेगा। अब वो हरकतें देखनी कैसे, उस पर मैं जरा बात कर लेता हूँ, और वो है स्ट्रेंथ्स। हजरत सुहेल जिंदानी का एक बहुत मशहूर कॉल है, और वो लोग जो सोच रहे हैं कि ये कौन है, हद हो गई। मैं कह रहा हूँ मतलब हद हो गई एब्सेंस ऑफ माइंड की। सो क्या फरमाते हैं वो फरमाते हैं that if you are bad at something and you try hard, you become not that bad. I repeat, if you are bad at something and you try hard, you become not that bad. But if you are good at something and you try hard, you become world class. वर्क हार्ड तो कांस्टेंट है ना, डिसाइड करो करना किस पे। पूरी जिंदगी सत्यानाश। हमारे इर्द गिर्द वाले हमें क्या बताते हैं, बेटा बाकी तो सब सही है, तो खाली अपनी मैथ सही कर लेना। पूरी जिंदगी उसी का रगड़ा। मैं आई एम अ प्राउड FP सोनियन में फाउंडेशन पब्लिक स्कूल से पढ़ा, लेकिन हैदराबाद, दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम।
फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, मेरा स्कूल में नाम था सोहेल जमाल, अभी नाम है सोहेल जिंदानी। ऑफ कोर्स मैंने कोई फादर चेंज नहीं करवाया, सरनेम यूज करता हूँ। तो उनकी मैनेजमेंट रिट्रीट हुई तो दे इनवाइटेड वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग लीडरशिप ट्रेनर सोहेल जिंदानी। पहला काम तो मैंने किया कि 2 दिन में 13 साल की फीस वापस ली, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और मैंने अब्बा को दी, मैंने कहा ये सूद समेत वापस किए, बहुत भरम करा लिए, तुम्हारे लिए हमने बहुत कुछ किया, ये सब उनसे लेकर दिया, ठीक है। बट अमेजिंग पीपल, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव थिंकिंग स्कूल्स दैट आई हैव वर्कड विद। एंड मैं गया तो स्कूल की जानने वाली थी, मैं मिला ही। बंदा पूछे ना सेशन से पहले बेइज्जती हो जाए, अच्छा थोड़ी लगता है। मैं मिला ही नहीं, मेरे कोई भी पुराने जानने वाले मिलते, मैं मिलता ही नहीं उनसे, बेकार उनको, क्योंकि उनको सब पता होता है आपके बारे में। उनके पास वो डेटा होता है जो आप मार्केटिंग अवेलेबल करना नहीं चाहते, ठीक है। आप में से कितने लोगों को फेसबुक की 1 साल पुरानी जो आपने स्टेटस लगाया था वो जब आता है 1 year ago you posted this, आपको शर्म आती है यार मैं इतना चीप था, होता है ना। तो आप सोचो 1-2 साल में ऐसा होता हो तो 20-25 साल में तो कैसा होता होगा। तो मैंने कहा इससे नहीं मिलता। अब वो टी ब्रेक में मेरे पास आई, इतना उनकी हाइट है, शी हैड टीयर्स इन हर आईज ऑफ कोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सो शी सेड सोहेल जमाल, आई सेड यस मैम। तो मेरे को गले लगाया तो मैं भी गले लगाया, मुझे कान में कहती तू इतने अच्छे कैसे हो गए। मैंने उनके कान में कहा क्योंकि मैं आपकी बातों में आया ही नहीं था। I did try to understand this thing. लाइफ का लिमिटेड होना इज अ ब्लडी मोटिवेशन। पता नहीं क्यों लोगों को मौत से डर लगता है, या शायद हरकतें ऐसी। वरना अगर मैं देखूं तो मौत इज द ओनली थिंग दैट हैज एडेड वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ। वरना है ही क्या इसमें ढंग का। मौत इज द ओनली थिंग दैट है। आप सोचो तो सही, आप ना मरो तो कैसे वल्नरेबल हो जाओ। सोचो कितना हॉरेबल हो जाएगा। ये तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने मैं एटलीस्ट मौत की गारंटी दी हुई है, गारंटी दी हुई है, लूंगा मैं। लाइफ इज लिमिटेड। नाउ विद लिमिटेड लाइफ यू हैव काउंटलेस वीकनेसेस and few incredible strengths. Use some common sense and tell me where I should be investing my bucks on. Unfortunately, we have been investing time to cover our limitless weaknesses. जिस दिन रॉजर फेडरर को पता चल गया ना कि मेरा बैकहैंड डेडली है, बस फिर गेम खत्म। Now he practices of every 100 shots, 70 shots he practices backhand. क्योंकि उसकी जो परफेक्शन है वो एक आम प्लेयर को मिल ही नहीं सकती है। और ये तो अच्छा है सचिन की माँ कोच नहीं थी उसकी, वरना उसको उसने कहना था बेटा बैटिंग तो सब कर लेते, बॉलिंग करके दिखाओ। उसके करियर का रगड़ा लग जाना था। सेल्स करते ना, बाज लोग होते जबरदस्त कॉन्वर्सेशन बिल्ड करते हैं, क्लोज नहीं कर पाते, उसको हम ट्रेनिंग में भेजते हैं क्लोजिंग। बाज होते क्लोजर होते हैं, किलर वो इनिशिएट नहीं कर पाते, उनको हम भेजते हैं ट्रेनिंग इनिशिएशन। मैं कह रहा हूं क्लोजर को क्लोजर की ट्रेनिंग कराओ और इनिशिएटर को इनिशिएटिंग की ट्रेनिंग कराओ और इन दोनों को टीम में काम करवाओ और फिर तुसी रोक कर दिखाओ। बट ये हम समझते ही नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज ऑर्गेनाइजेशंस आर बिकमिंग इमोशनल डेड जोन्स। डेड जोन्स क्यों? क्योंकि व्हेन यू डू समथिंग व्हिच यू आर नॉट एंजॉयिंग डूइंग। आप में से कितने लोगों ने धूप में खेला है? हाथ उठाओ। गुड। कभी थके? धूप में खेल के मैं तो थक गया था। आज देखो ऑफिस में एसी में थक जाता। क्यों? डेड जोन। डेड जोन। मैं तो कहता हूं ऑफिस का आपको, और ये ना ये सारे, एक तो मैं ये एचआर वाले चोंचले तो मानते ही हैं, एंगेजमेंट सर्वे तो ये यार एक बात बताऊं मेरे को, मैं आज आपसे अल्लाह माफ करे, मेरे गुनाह बख्शे अल्लाह, मैं आज जनरल नॉलेज की बात करता हूँ, कॉमन सेंस। कितनों के आप में बच्चे हाथ उठा लो भाई। तो घर जाते हो तो बच्चा दुखी बैठा हो तो आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता? बच्चा दुखी है,
आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, पता चलता है ना? तो फिर मैं ये तो मान ही नहीं सकता कि आपका अगर सबऑर्डिनेट ऑफिस में दुखी है तो आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आप अपनी जागती हुई जिंदगी का 70% हिस्सा तो वहां निकालते हो। अब सोचो कि घर पे आप जाओ, ये मेरा बच्चा है, ये दुखी है, मैं घर गया, मैं देखा दुखी है, खोला मैंने ब्रीफकेस, बेटा ये एंगेजमेंट फॉर्म, फील करके बताओ कितने दुखी हो। ये कहेगा तू क्या बेदखल करेगा, मैं अपने आप को तेरी जायदाद से बेदखल करूंगा। क्योंकि कॉमन सेंस बता रहा है ना, डू समथिंग अबाउट इट। ऑर्गेनाइजेशन में हमें दुनिया भर के फॉर्म चाहिए, क्यों? बिकॉज वी आर नॉट ह्यूमनाइज्ड। आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर एन इंश्योरेंस जायंट, उनके साथ उनकी सीनियर लीडरशिप के साथ काम किया। सीईओ वांटेड टू सी मी वेल। By the way, I'm in favor of engagement survey. Don't take me wrong. Organizations of massive sizes, they need it to see a bigger picture of it. But I'm talking to line managers. For God's sake, what the hell you are waiting for? आपके सामने बंदा बैठा है, make some action. So I was working with the CEO, and he said, Sindhani, amazing work. We want some engagement survey from you. अब जो HR के लोग अगर यहाँ बैठे तो उनको पता है ये कम से कम 1.5 से 2 मिलियन का नुस्खा है। मैं कहता देखिए, अगर आपने अच्छा वाला करना है, मतलब टॉप क्लास, तो उसमें 3,500 रुपए लगेंगे। बाकी रेगुलर वाला तो मैं 15-20 लाख में कर लूंगा। उसने कहा उल्टा नहीं बोल गए? मैं कहा नहीं, सीधा बोला, अगर वर्ल्ड क्लास चाहिए 3,000, रेगुलर चाहिए 15 लाख से 20। उसने कहा तो मैं वर्ल्ड क्लास ही करवाऊंगा ना, कैसे होगा? मैं कहा आप एक माइक्रोफोन खरीदो, जहां आपके लोग सुट्टा पीते हैं ना, वहां लगा दो, बाकी रूम में बैठ के सुना करो, रूह काम चाहिए। समझ तो आ रही है ना? लेकिन उसको करने के लिए जिगर बहुत ज्यादा चाहिए, कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए मेरा मशवरा है, आप ये रेगुलर वाला 15-20 लाख में करवा लो। इसमें क्या इज्जत भी रह जाती है और बुरा भी नहीं लगता। समझ आया भाई? हिम्मत है तो फिर करने वाले बनो ना। Have that courage. Don't you have courage as father to listen to the problem that my child has? Where this courage goes in organization, because organizations are not human. That's what I'm contending for. They're not human. They are so systematic, so process based, कि वो humanity खत्म हो गई है। इतना लंबा कर देते हैं, उसमें बंदा थक के खत्म हो जाता है। Passion. And then last but not the least, something that is now my core work, busting bureaucracies. Now this is very difficult work, because busting bureaucracy session कराने के भी पैसे में bureaucracy से लेता हूँ। But देखें, मैं आज आपको एक बात समझाऊँ। कंट्रोल और फ्रीडम एक साथ एग्जिस्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली हमको लगता है कि कंट्रोल और फ्रीडम एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं आपसे कह रहा हूं कंट्रोल और फ्रीडम एक साथ एग्जिस्ट करता है। हमारे सिस्टम्स ने हमें सिखाया है या तो कंट्रोल होगा या फ्रीडम होगा। नहीं तो खुला छोड़ दूं, ये किसने बोला? नहीं मतलब सांस भी ना लेने दूं, मैंने ये भी नहीं बोला, मैंने ये भी नहीं बोला। यू क्रिएट बाउंड्रीज, ब्यूटिफुल। व्हाट नीड्स टू बी डन, चलो आप बता दो। हाउ तो छोड़ दे। Of course ensure ethics, of course ensure values, but how छोड़ दे, उसको कुछ नया ट्राई करने दे, कुछ नया सोचते हैं। Possibility. This can be a very powerful lesson for parents sitting in this room. Power, control and freedom can coexist. और पूरा दिन उनको टीवी के सामने छोड़ दो, नहीं मतलब टीवी भी नहीं देखने दो। बीच का रास्ता है, बीच का रास्ता है, you see? बट वो रास्ता एक्सप्लोर करने के लिए क्या नीचे करना पड़ता है? अपना गैर जरूरी फजूल का ईगो, जिसमें मैं ना सिर्फ ये बताऊं क्या करना है, मैं ये भी बताऊं कैसे करना है। कभी गाड़ी खराब हो ना, मैकेनिक
काम करना शुरू करे, फिर उसको बताओ यार ऐसे नहीं, तू ऐसे कर, उसने आपको दे देनी है गाड़ी पे, आप ही कर लो फिर। भाई आपने उसको बताया ये मसला है, ही सॉर्ट इट आउट, राइट। और अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉय में इतनी काबिलियत नहीं थी, तो टेक्निकली अल्लाह गुनाह माफ करे आपके, मसला आपके साथ, ये बंदा हायर हुआ कैसे? क्योंकि मेरे हिसाब से एक अच्छा लीडर कौन होता है, शायद एक अच्छा मार्केटियर कौन होता है, एक ऐसी एजेंसी को ऑनबोर्ड करे व्हिच इज द बेस्ट। यही दिमाग है ना, बेस्ट को ऑनबोर्ड करो, बेस्ट टीम मेंबर को ऑनबोर्ड करो ना, यही दिमाग है ना, बेस्ट को ऑनबोर्ड करो एंड देन बिकम चीफ हर्डल ऑफिस रिमूवल ऑफिसर। हर्डल्स हटाओ उसके लिए, बट हायर द बेस्ट एंड रिमूव द हर्डल्स, दैट्स इट। वहां पे भी तुसी चौधरी लगना है, दैट्स अ प्रॉब्लम। So management rule number one, get the hell out of the way and become chief hurdle removal officer. That's the job. So now, as I conclude, there is a news. People ask me, so ये कैसे करें? There are no experts. Do you know anybody who is an expert of future? किसी को जानते हैं? अच्छा, आप में से कोई ऐसा है कि आज जो इनोवेशन एग्जिस्ट करती है, आप में से किसी ने प्रेडिक्ट की थी ये आने वाली है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि एटीएम किसी बैंकर ने सजेस्ट किया होगा? मैं कसम खा सकता हूं कोई भी कर सकता है, बैंकर ने तो नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो बिजी था कि नोट को जल्दी कैसे गिनते हैं, वो उसने नहीं किया होगा, मैं कसम खा सकता हूं। बैंक किसी ने कैसे इन्वेंट किया होगा मैं बताता हूं। ये लाइन में कोई खड़ा होगा टेलर की, फिर एक बंदे ने दूसरे को कहा होगा यार अजीब कोई ख्वारी है यार, मैं तो कहता हूँ कोई ऐसी कोई दीवार में कुछ चीज लगी हो ना, निकाल के पैसे ले जाओ। ये किसी जीनियस ने सुन लिया हो। क्या हुआ कि सैन होजे में, कैलिफोर्निया आगे, सैन होजे के अंदर एक स्टैंड था जहाँ पे टैक्सीज आती थी, तो एक बंदा बेचारा पीछे से भागते भागते हाँफते हाँफते पहुंचा। वहाँ एक लड़का पहले से खड़ा था, ये फुल हाँफते हाँफते पहुंचता। इसने उसको कहा कसम खुदा की, मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा मैजिक हो कि घर पे यूं करो और टैक्सी घर पे आ जाए। उबर वॉज इन्वेंटेड। ये अगर अपना तारिक रोड पे आया होता ना और इसने वहां पे आके कहा होता ना यूं करूं और गाड़ी आ जाए, तो उसने पूछना था और मीठे में क्या लोगे? Are you getting me? So now when I just complete my talk, I want to just complete with one simple thing, and I think I'm passing it on to as many people as I can. If somebody asks me, इस मुल्क में किस चीज का रिसेशन है? इस मुल्क में ड्रीमर्स का रिसेशन है। We don't have dreamers. साले सब प्रैक्टिकल हो गए। प्रैक्टिकल। किसी के पास ऑल्टो है, उसको थप्पड़ मार के पूछो कौन सी गाड़ी की ख्वाहिश है, स्विफ्ट। मतलब ख्वाहिश नहीं बताते, औकात बताते। ख्वाहिश तो बड़ी होती है, ख्वाहिश औकात से बड़ी होती है, और ख्वाहिश उससे करते हैं, आप कर रहे हैं भाई, कौन रोक रहा है आपको? आई वॉज टेकिंग सेशन फॉर इंटरव्यू। सो 18 दिन के लिए मैं फैसलाबाद में था। मैंने क्या करना था, होटल जाके सोना ही था। मैंने इनको कहा प्लांट ले जाओ, प्लांट गया, वर्कर्स देखे, बहुत कमाल लोग थे। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा मुझे वर्कर्स के साथ सेशन करना है। तो मेरे साथ जो बंदा था वो थोड़ा टेंशन में आ गया कि कैसे करेंगे। मैं कहा फ्री करूँगा, चेहरे पे नूर आ गया। वो भी कैसे करेंगे? मैं कहा भाई 4 बजे में फारिग हो जाता हूँ, आधा घंटा रेस्ट करूँगा, फिर इनके साथ 1 घंटा सेशन। मेरी जिंदगी का बेहतरीन असाइनमेंट था, बहुत मजा आया। बिल्कुल सादे लोग। एक मैंने सेशन ले रहा था तो मैंने एक लड़के से पूछा, हाँ भाई तेरी क्या ख्वाहिश है? उसने कहा माँ बाप को हज कराना है। कैसी ख्वाहिश? सबने ताली बजाई मेरे लिए। मैं कहा तू करके आया? उसने कहा नहीं। मैं कहा नहीं तो तूने ख्वाहिश तो खाली माँ बाप की इज़हार की, नहीं तो इतने पैसे थोड़ी है। मैं कहा माँ बाप के हैं? उसने कहा नहीं। मैं कहा तो तेरे को भीख ही मांगनी थी ना, 3.5 की मांग लेता। उसने कौन सा HR से अप्रूवल लेना था? वो कोई ना कोई सेटिंग बना देता। लेकिन ख्वाहिश करने में भी हम इतना प्रोसेस चला रहे हैं कमबख्त। मैं छोटा था, सारे दोस्त वही जतोई ठाकुर वाले के हैदराबाद में पढ़े थे, सारे वही थे। वो मेरा एक दोस्त था यासिर, उसकी गाड़ी थी, उसका नंबर था जतोई 70। मैं अक्सर उससे पूछता था कि बाकी 16 कौन हो रहे हैं। भाई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। मेरे को बहुत ख्वाहिश होती थी कि मैं प्राडो लूंगा किसी दिन। एक दिन आएगा इंशाल्लाह भाई आपका प्राडो लेगा, ऐसा ख्वाहिश थी मेरी।
तो मेरे दोस्तों का क्या फर्ज होता है? आपके ख्वाहिशों को जलील करें। उसने मुझे कहा कि बेटा तूने शक्ल देखी है, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी कभी नहीं थी। मैंने कहा मैंने प्राडो वालों की शक्लें देखी। और उन शक्लों पे अगर प्राडो मिल सकती है तो भाई का तो प्लेन है। हाथ हो गई यार। At least have dream for yourself. I think this is so important, so powerful. With this, I think I had a good time with you. I also hope that you also had a good time. And it's you know, at times I get very sad when people tell me, अच्छा था सेशन बट बहुत हंसने का था। नहीं, आप क्या कह रहे थे? You wanted me to kill you the same constipated way जो आज पूरा दिन ऑफिस से आप निकल के आए? Or can we have one good time? And I tell you, go back and think about it. People learn more when they laugh, when they enjoy, when they have good time, because that enters into brain fastest. Stories help you enter fastest. Marketeers tell stories. और ये स्टोरीज सिखाने का प्लान आपको पता ही है, हमारा प्लान नहीं है, इंसानों का प्लान नहीं है, ये मेरे रब का प्लान है। आप पढ़े कुरान क्या है? स्टोरी आफ्टर अनदर स्टोरी। हेलो, ओके, कुरान, बाइबल, रीड इट, स्टोरी आफ्टर अनदर स्टोरी, because that's a method that reaches human heart more than any other thing. So be a wonderful storyteller. That's it from my side. I hope you had a good time. Shukriya. Thank you. And questions? Can I have some questions? Yeah, questions. I love it. As I Few said. questions. Few Be questions. brief in your question. Introduce yourself and please be brief. Yeah, I look forward for that. Yeah, पूछ लो यार। Yes. किसकी? इसकी नहीं। आप लोग। नहीं, आई थिंक इसलिए प्रोबोनो, ऐसा कोई मैं नेक आदमी नहीं हूँ, क्योंकि ये कौन सा कमा रहे हैं इसमें। मेरा सिंपल मैकेनिज्म ये है, वरना तो अल्लाह माफ करे कभी ना करे। लेकिन आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ही होगी कि इसी तरह ब्रिंग पीपल ऑफ नॉन मार्केटिंग बैकग्राउंड। नाउ आई एम टेलिंग यू मैं क्यों कह रहा हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट कर्स इन एवरी प्रोफेशन इज कि हम उसी प्रोफेशन की बातें सुनते रहते हैं, एंड एज अ रिजल्ट हमारे ब्लिंकर्स जो होते हैं ना वो और स्ट्रांग हो जाते हैं, स्ट्रेंथन हो जाते हैं, फिर हम उससे बाहर सोचते ही नहीं है। सो ब्रिंग इन समबडी हु डज डिजिटल स्टोरी बोर्डिंग, उससे कुछ सीखते हैं कि क्या बोल रहा है वो बच्चा, एंड परहैप्स कुछ ऐसा सीखने मिलेगा जो हम बहुत बड़े मार्केटिंग डायरेक्टर से ना सीख सकें। या सर, क्वेश्चन? Yes, sir. My name is Sasi and I am representing Abbott. मेरे क्वेश्चन ये कि जब आपने कहा कि we have to tell our employees or subordinate that what to do and we don't tell how to do, यहाँ पे दो issues आते हैं. One is that willingness to do. ये हमारे काफी याद होता है कि people are not willing to do what they are bound to do. और secondly they are afraid कि अगर मैंने 100% produce कर लिया तो next time उससे 110 का expect किया जाएगा. These are the two barriers. So pharma like है ना? नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट। पहले वाले को मैं क्लियर कर दूं कि जहाँ पे आपने कहा कि दे आर नॉट विलिंग टू, दैट्स अ फैक्ट। इट्स नॉट अ बिलीफ, इट्स अ फैक्ट, बट आई थिंक दिस शुड बी अ बैड फैक्ट फॉर अ कंपनी टू नो व्हाई द हेल पीपल आर नॉट विलिंग, बिकॉज वी हैव नॉट मेड दैट वर्क इंटरेस्टिंग इनफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप ये सोचो कैसे हो सकता है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं आपको दूँ तो ना मेरा आंसू बहे और ना मैं इमोशनल हो जाऊँ, बहुत कोशिश करूँगा। आई वॉज अटेंडिंग अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम विच आई एम नॉट मेंशनिंग बिकॉज मैं उसको मार्केट नहीं करता। तो हमारा जो ट्रेनर था वो एक पेंटिंग दिखाया हमको, उस पेंटिंग में फ्लॉस थे थोड़े बहुत, तो उसने कहा भाई इस पेंटिंग पे अपने कमेंट्स करें। हमने रगड़ दिया, तबाही फेर दी। जब सब पूरी तरह गालियां दे चुके ना, फिर एक लड़का सुबह से बैठा था, उसने कहा वंडरफुल, ये इसके आर्टिस्ट है। फिर हमने टोपी, हमने कहा वैसे इतनी बुरी नहीं है।
कहा बट ये इसका आर्टिस्ट है ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं कहा भाई तो तू तय करना क्या कह रहा है। एंड यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड जब आप आर्ट की बुराई करते हैं ना तो आर्टिस्ट की बुराई करते हैं, और ह्यूमन का आर्टिस्ट अल्लाह है। थोड़ा हल्का हाथ रखें। हम जब ये बगैर सोचे फतवे दे देते हैं ना कि बंदा किसी काम का नहीं, सर फिर आपको शायद उसका काम पता नहीं चला। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो उस काम के लिए फिट नहीं है, ये भी हो सकता है ना। लेकिन बंदा ही किसी काम का नहीं है यार। मेरे रब ने तो चुपकली तक यूजलेस नहीं बनाई, ये तो फिर भी अशरफ था, यानी कुछ गड़बड़ है। अब वो विलिंग क्यों नहीं है, इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, जो मैंने अपने पैशन वाले पॉइंट में कहा, वो कंसिडर ही नहीं करती इंडिविजुअल टैलेंट्स को, इंडिविजुअल पैशंस को। एक बंदा है जिसको मजा आता है डॉक्टर से इंटरेक्ट करके, उसकी मत मारी हुई है एक्सेल शीट में, उसको कैसे मजा आएगा? वो थक रहा है, वो रोज बेजार हो रहा है, वो कह रहा है तुम्हारे को मैं डॉक्टर से बात करके दे रहा हूं ना, वो भी करेगा, एक्सेल कौन करेगा? And as a result, we kill our top performer for the name of consistency. क्यों? क्योंकि देखें आज जिस ऑर्गेनाइजेशंस में हम बैठे हैं ना, अब एक तो हमारा हिस्ट्री इतना वीक है, अल्लाह माफ करे। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें हम बैठे हैं, ये कितनी पुरानी इसकी हिस्ट्री है। अच्छा मुझे पता है 1870 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था? 1870 में 1870 में एक तुक्का मारे मुसलमानों, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा? है 0? और कोई तुक्का? 10%। भाई साहब इस तरह का कोई इंडेक्स होता ही नहीं था। ये कुछ चवल हुई अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है यही नहीं पता था, तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे पता होगी? खुद उगाते थे, खाते थे, सो जाते थे। फिर एक आदमी आया, उसका नाम था हेनरी फोर्ड। सत्यानाश। उसने देखा कि ये जो एक एवरेज अमेरिकन औसतन 1 घंटे में बहुत तीर मार ले तो 50 सेंट बना लेता है, मेरी फैक्ट्री में काम करे तो घंटे का मैं इसको $5 दूं तो भी 500% नफा कर सकता हूं। एंड द इंडस्ट्री वॉज बॉर्न। लेकिन इस इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री नहीं खाली पैदा हुई, एजुकेशन सिस्टम पैदा हुआ। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो सिर्फ वो तैयार करेगा जो उस मशीन के लिए रिलायबल हो। आपके ड्रीम्स गए भाड़ में, फिर हम कॉग्स बनाने लगे, उस मशीन के कॉग्स बनने लगे। आज क्यों ऑल ऑफ सडन इतनी रिजेंटमेंट आ गई है लोगों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स्ड काम को लेकर? बिकॉज दे आर गेटिंग बोर्ड, क्योंकि इसके लिए ह्यूमन ब्रेन बना ही नहीं था, बट उसके अलावा कोई ऑप्शन पता ही नहीं था, और हम उसी के अंदर फिट होने लगे। आज आप देखें, आप एक गलत डिग्री, कितने लोगों ने जो क्वालिफिकेशन पढ़ी है, आप शर्मिंदा है कि आपने पढ़ी है? हाथ उठा लो। मैंने BBA MBA किया, आई एम अशेम्ड ऑफ द फैक्ट। उस वक्त जरा करियर काउंसलिंग होती ना, मैंने शायद साइकोलॉजी या कुछ इस तरह का पढ़ा होता, ऑनेस्टली। लेकिन हम क्या करते हैं? एक तो गलत पढ़ाई पढ़ ली, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह आपके गुनाह बख्शे। फिर चूंकि 4 साल जाया किए उसको वैलिडेट करने के लिए 40 साल और जलील होते। ये करने वाली बात हुई। डॉक्टर बारी इस मुल्क के बेहतरीन कार्डियक सर्जन है, बट आज वो अपनी सर्जरी के लिए नोन नहीं है, वो इंडस हॉस्पिटल के लिए नोन है, क्योंकि ही रियलाइज दिस इज समथिंग जिससे वो थक नहीं रहे। यहां आकर हम मर रहे हैं। आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन ही खाली मेरा काम हो उसके ऊपर है। एबट तो फिर भी बड़ी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई आगे काम लगा हुआ है, आई नो दैट, आई नो एबट, कोई इनवॉइस नहीं इसीलिए, बट एबट आई थिंक वेरी वेरी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। आई वर्कड विद देम, दे टेक केयर ऑफ पीपल। इनका मेरे ख्याल से फार्मास में सबसे ज्यादा रिटेंशन रेट इनका होगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज वी आर स्ट्रगलिंग विद मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस मोर ह्यूमन, राइट? And I think that's the real challenge. Anyway, yes ma'am. I have one question from the other perspective about passion only. Like if a subordinate is very passionate and their manager, they don't let them, explore their passion. So how can that subordinate, Work it out. Yeah. That's
ये आप अपने लिए तो नहीं पूछ रही? मुझे क्या बता? ओके ओके, आई थिंक इसका आंसर मैं 2 मिनट ले सकता हूँ, इसमें थोड़ा इसको इलैबोरेट कर देते हैं, ठीक है? देखो भाई, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जिनको नौकरी करना अपने घर चलाने के लिए ज़रूरी है, दूसरे वो जो नौकरी नहीं भी करें तो घर चलेगा। ऐसा नो आप में से इस रूम में जो लोग बैठे हैं, मेरा एक असेसमेंट है कि ज़्यादातर पहली कैटेगरी में, थोड़े बहुत दूसरी कैटेगरी में भी होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप गरीब घर में पैदा हुए, आपका बाप गरीब है, कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन आपका ससुर भी गरीब है ना, यू आर हॉरिबल। आई थिंक इट्स शेमफुल, बिकॉज आपको बिल्कुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं आती। हद हो गई। Anyways, come back. Just kidding, hey. So, ये रिकॉर्ड से फिर अच्छा. So, are you getting my point? Now, for the category who has to survive, वो बहुत दफा compromises करता है. But the category who doesn't need money for survival, अगर वो compromise करे ना, मैं कहता हूँ उसको तो पहले ही अलग ले जाके थप्पड़ मार देनी चाहिए कि भाई तू तो पूरा खेल, बट ये हमारे जहनों में है, देखो जब तक रगड़ा नहीं खाओगे ना सीखोगे नहीं। अभी मैं एक ब्लॉगर से मिला था लाहौर में, महीने का 3-4 हज़ार डॉलर बना रहे हैं, लेकिन माँ को बहुत फिक्र है कि बेटा बीकॉम करके कहीं अच्छी बैंक में नौकरी देख लो। मैंने उसकी माँ को समझाया, आंटी क्यों टेंशन ले रही हो, बच्चा सही जा रहा है। उसने कहा लेकिन ऐसे तो क्या है, ऐसे लेट के लिखता रहता है, ऐसे थोड़ी होता है। मैं कहा भाई तू खड़ा हो लिखा कर, क्या कर सकता हूँ, ये लेटने पे इसको प्रॉब्लम है, तू प्रॉपर ऑफिस की सीटिंग रख। अच्छी माइंडसेट है ना, क्योंकि वो फंसा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि नौकरी ऐसी है भाई, ये इससे आ रही है तो सही है वरना हराम है। दिमाग प्रॉब्लम। तो एक तो पहली कैटेगरी को करो बाहर। अब आ जाओ दूसरी कैटेगरी पे, जिसमें हमने ज्यादातर लोग होते हैं जिसको नौकरी भी करनी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पैशन ढूंढो। आज मैं आपको इसका स्टेप बताता हूं बिकॉज ऑफ हर क्वेश्चन। लिख लो FREE, फ्री, FREE, और याद रखना F इज फॉर फोकस। सबसे पहला काम आपको ये करना है, यू हैव टू फाइंड व्हाट गेट्स यू एक्साइटेड। यू हैव टू फाइंड वो ऐसी कौन सी चीज है जो आप जब करते हो तो यू लूज ट्रैक ऑफ योर टाइम। वो ऐसी कौन सी चीज है कि जब कोई कर नहीं पा रहा होता है तो आप वॉलंटरी टीचर बन के उसको सिखाने लगते हो। Find out those things. First is focus. And I don't have a lot of time to take this further, but I have to give this in. First is focus. Second, release. जैसे ही पता चले ना वो क्या है, छोटे छोटे मौके ढूंढो। मुझे अभी किसी ने बताया उसको टीचिंग का बहुत शौक था। मैं कहा क्या करता है, बोला आप तो क्या बैंक में लग गए। मैं कहा तू शाम को ट्यूशन पढ़ा ले, उसके कहा पैसे। मैं कहा तू ऑनलाइन क्लासेस ले, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना कर डाल। ये स्टार्टेड, कुछ भी कर, रिलीज तो कर, पता तो चले, मार्केट का फीडबैक तो लेके कैसा है। तो सेकंड इज रिलीज। थर्ड इज एजुकेट। अपने आप को उस पर एजुकेट करो। ये टैलेंट विदाउट प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रिपरेशन इज यूजलेस, इट्स हॉरिबल, इट्स ऑफ नो वैल्यू। It's just like coal without a proper exploration and filtering. It's of no value. So educate yourself. Unfortunately, corporates में सारी ट्रेनिंग किस चीज पे होती है, जिस पे आप वीक है। अरे भाई ट्रेनिंग उस पे कराओ जिसमें बंदा अमेजिंग है। मैंने सब ऑप्शन है सर, आप अजीज साहब की हम ट्रेनिंग कराएं ऑन फोटोग्राफी वर्सेस अली मोहम्मद। आपको पता है ये ख्वार होने वाला है, वो छा जाएंगे, क्योंकि एक तो वैसे उसको मजा आ रहा था, ऊपर से हमने और एजुकेट कर दिया। हम एजुकेट किस टॉपिक पे करते हैं, जिसका नाम सुनते ही आप पे मनूसियत तारी हो जाती है। सोहेल जिंदानी अगर कहीं नौकरी कर रहा होता तो कौन सी ट्रेनिंग पे जाता, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस मैनेजर। भाई तू ये फाइनेंस मैनेजर से क्यों नहीं करवा रहा, नॉन फाइनेंस को क्यों जरूरी कर रहा है। ये प्रेजेंटेशन अच्छी दे रहा है ना, तो उसको प्रेजेंटेशन स्किल्स के प्रोग्राम में भेज ताकि वो और अच्छी करे। माइंडसेट, एजुकेट, एंड लास्ट इज एक्सपेंड। हमें यहां तक आना है। जब आप अपने आप को फर्स्ट फोकस करते हो, रिलीज करते हो, स्मॉल अपॉर्चुनिटीज देते हो, एजुकेट करते हो, यू बिकम सो पावरफुल
that finally you can expand. हम क्या करते हैं, पहले स्टेप पे सोच रहे होते हैं एक्सपेंड कैसे करें. That's not going to happen. So focus, release, educate, expand. That's how it works. Okay? मुझे मजा आ रहा है. Yes. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इसमें खुद तय Good, I like that. Okay. Yes. नहीं सर, प्लीज. मेरा नाम मोहम्मद अनस है. I'm representing लाल किला रेस्टोरेंट. Wow. मेरा सवाल ये है कि समटाइम हम एज अ मैनेजमेंट, एज अ गुड मैनेजमेंट, पीपल्स हायर करते हैं और उनको एजुकेट करते हैं, उनको एथिक्स सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक प्रोग्रेस भी देते हैं. उसके बाद वो कंपनी चेंज कर लेते हैं या कोई 19-20 अच्छी ऑफर आ जाए तो चले जाते हैं. तो उसमें आता है. मैं कह रहा हूँ कि ट्रेन नहीं करो तो वो आपके कस्टमर जलील करेंगे, फिर कस्टमर चले जाएंगे. भाई मौका तो लेना पड़ेगा, बंदा ट्रेन करो. नहीं, मैं वो एक बड़ा मशहूर कॉल है, दे से वी ट्रेन पीपल एंड दे लीव. इमेजिन इफ यू डोंट ट्रेन एंड दे डोंट लीव. वो तो मेरे पड़ जाएगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो वो ज्यादा खतरनाक है. ये अच्छा नहीं है कि कोई कंपनी वाला बताए यार बंदे हम लाल किले के उठाते हैं, सेट बंदे, जान छूट जाती है. ये फिर भी अच्छी बात है. अब आते हैं, देखो हर मुल्क के अपने डायमेंशंस होते हैं. हमारे वर्क एथिक्स के अपने डायमेंशन है. गुर्बत है, मसला है. मैंने देखा है लोग यहाँ ये गैलप के बहुत सारे सर्वे पाकिस्तान में नहीं चलते. पीपल डोंट लीव, सैलरी के लिए नहीं छोड़ते, मैनेजर को छोड़ते हैं, सारे डेटा हैं. लेकिन जब पेट पे पड़ती है ना, सबका दिमाग घूम जाता है. और ये है हमारा मास इंडेक्स ऐसा है. आज इस वक्त आप देखें, आज आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द मैसिव केबल मैन्युफैक्चरर, वी वर टॉकिंग टू देम, ही सेड द बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग. हम ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं दे सकते, ये हमें पता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि उसका खर्चा बढ़ गया है. यानी उसको जरा फ्लिप मिला ही दो, बिकॉज उसको सर्वाइव करना है. सो माय आंसर ओवर हियर इज educate with utmost sincerity into the process. It will either benefit you here or might benefit you there even because you educated. आपको मैं आप सब अपने आप को टेस्ट करो. एबट यहाँ पे बैठा है, मैं अक्सर एबट बैठा है, बट मैं फामियो का तो जिक्र नहीं करूँ तो मेरे पैसे कहाँ पूरे होंगे. वन ऑफ द कंपनी आई लव, आई अडोर. हमारे पास लोकल कंपनियाँ इतनी बढ़िया हैं, अच्छी कंपनी है. इंटरलूप, फैसलाबाद, क्या कंपनी है यार, क्या कंपनी है, क्या ह्यूमंस हैं, अमेजिंग. अच्छे लोग हैं इस मार्केट में, बहुत अच्छे लोग हैं. ये प्रोजेक्ट नहीं होते ना तुम प्रोजेक्ट, सारी गंदी स्टोरीज होती हैं. एजुकेट, इनके बंदे जाके दूसरी जगहों पे चला रहे हैं, लेकिन वहां भी जाते हैं ना, कभी मिल जाए ना तो बताएंगे यार वो वाली बात नहीं है. दे आर ब्रांड एम्बेसडर्स. एजुकेट विद द प्योरेस्ट इंटेंट, एल्स कुछ नहीं कर सकते, बट एजुकेट. क्योंकि फिर नहीं गया छोड़ के, फिर क्या करोगे? फिर कस्टमर जाएगा ना छोड़ के, राइट? सर अच्छा खत्म करते हैं. ओके सॉरी सर क्वेश्चन. मेरे ख्याल से तो इसमें कमाल अतातुर स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक किसी रिट्रीट पे इनको शिप पे ले जाए और वो फिर डुबो के आ जाए. ये तो है श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी जिससे जल्दी जान छूटेगी, वरना फिर दुआ करें क्योंकि एक ना एक दिन हर जात ने मौत का जायका चखना है. ये दूसरी स्ट्रैटेजी. अब आज तीसरी प्रैक्टिकल करने वाली स्ट्रैटेजी. ये बड़ा मुश्किल काम है आसिफ साहब, जिसका आपने भी जिक्र किया कि लोगों को निटिग्रिटी से आकर बिग पिक्चर में कैसे लाएं. ओके, एंड आई हैव बीन कोचिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव्स. व्हाट आई हैव रियलाइज्ड नाउ, दिस इज अ डीप शिट सीक्रेट दैट आई एम पुटिंग अप. I just realized few months back this is a wrong desire.
निटिग्रिटी से उसकी माइंडसेट को बिग पिक्चर में टेक्निकली लाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उस कम वक्त की कैपेबिलिटी ही उतनी थी। उसने वही किया था, वही करता रहा था, बड़ा बन गया, सेठ बन गया ना, बड़ा बन गया। अब वो बड़ा तो बन गया है, लेकिन क्या करके बड़ा बना है? निटिग्रिटी। अच्छा, वो कोई और कर रहा होता है ना, बोर हो रहा होता है, ये कहता है ये मैं करूंगा। अच्छा, इसको आप रोक नहीं सकते, क्यों? सब नाकाम हो जाएंगे। ऐसे ही भाई तुम्हारा कामयाब हुआ है। अब ये माइक्रो मैनेजमेंट को हम इसके चैनल को ब्रेक कैसे करें? इसका एक दो पॉसिबल सॉल्यूशंस जो मैंने अपने कोचिंग सॉल्यूशंस में ट्राई किए, आप कुछ कहना चाह रहे हो? Actually, we have to vacate the hall. Oh, okay. Sorry, Sharik, हम जरा लंच पे टी पे इसको कंटिन्यू करते हैं. So, thank you so much. Thank you. When the trust goes up, cost gets down, and the speed goes up, and vice versa. Thank you, Sohail, for the wonderful, lively presentation. And I'm very grateful for the audience for taking part in this presentation. Before we go for the tea, Marketing Association have a tradition of recognizing their guests by presenting the memento. So I request Ali Hassan to come over, and I request Sohail to come over for presentation of the memento.